The chapter number 1 sets, and that we have done. Okay, now today in this chapter we are going to see a different sums in this chapter, real number, right? So we will do some revision before starting with this exercise of this chapter. You might knowing all these things which I am going to show you today in this lecture, but still we'll do one revision part. Okay, so this is just a introduction or revision part, I can say, of this chapter, real number. Okay, first thing is we'll talk about the natural number. You know everybody what is a natural number. The set of natural number is start from 1, 2, 3, 4 and so on. This is called as the natural number. We everybody know. Okay, but just for a brush up we are doing this once again. Second thing you should know, that is W, that is whole number. Okay, so whole number start from 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Third thing you should know the integers. Now what is integers? Integers generally see, you know there is a number which is called 0. On the right hand side the numbers which are there, it is always positive, right? And on the left hand side the numbers, and on the left hand side of the 0 the numbers are always negative, so they are called as integers. Okay, so all these numbers which are written in the bracket 0, 1, 2, 3, 0, 1, minus 1, minus 2, minus 3, all these are integers. And one more thing, that is rational number. Okay, set of rational number. You have studied this also in the 8th standard, right? Set of rational numbers, where you know that P upon Q, P and Q belongs to integer, P and Q belongs to integer and Q does not, are not equal to 0. Okay, rational number का मतलब ही ये होता है कि where P upon Q, okay, where P and Q both are integers. It can be any number, okay, but it should not be equal to 0. Which number should not equal to 0? Q. अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो P भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज 0, राइट? तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर Q इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0. सो ऑल दिस थिंग्स, natural number, whole number, integers, rational numbers, all together they form a real numbers. What they form? They form a real numbers. Okay, so all this combination of all these numbers are nothing but a real numbers. So this concept you should know. Okay, now another thing which you are going to study in this chapter is two concepts. First I'll tell you, one is a terminating type and second is a non-terminating type. Terminating type. Now what is terminating type? See, you have heard this word terminate. Terminate means finished, complete, end. Okay, that is called as terminating. Terminate हो जाना, right? So suppose one example I will take, example 2 upon 5. Now if you divide this, now you know how to divide this 2 upon 5. Let us do here also. I'll show you. You know, in this way you are supposed to divide. You know how to divide this. We have already studied in our lower classes, right? Now डिनोमिनेटर में जो होता है, ओके, इट विल कम आउटसाइड, एंड न्यूमरेटर में जो होता है वो इनसाइड होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड 5 इज अ डिवाइजर एंड 2 इज व्हाट? डिविडेंड, राइट? नाउ हाउ टू डिवाइड दिस? you know that you will put a point here, 0 point, right? You will start because you cannot divide this 2 with a 5, so what you will put here? Point, and यहाँ पे भी point आ जाएगा, right? एक 0 के बाद पॉइंट आपने पुट किया तो पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर के बाद एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है? तो नाउ 5 की टेबल में 20 आ रहा है, येस, 5 4s are 20, and then you will minus it and you will get 0. That's it, division finished. Okay, so what is your answer? That is 0.4. Now you cannot further divide this, so therefore this such numbers is called as the terminating type. ऐसे नंबर जो आगे डिवाइड नहीं होते, बस फाइनल आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटिंग टाइप. I hope it is clear. Okay,
So this is are the terminating type examples. More examples are there. One example I'll give you one more. 7/64. आप इसको divide करके देख लीजिए. When you will divide it, okay, you will get the answer in this way. Minus 0. Already minus sign है इसके लिए. 109,375. When you will divide it, you will get this big number you will get. Okay, और इसके बाद आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. You cannot divide this. So this is the final answer. So this is the example of terminating type. Okay, so I hope it is clear what is a terminating type. Okay, where the remainder get 0, where you cannot do further division. Okay, the numbers are terminated, they are called as terminating type. Okay, now next one is non-terminating. Next concept is non-terminating type. Non-terminating recurring type you can say. Non-terminating recurring type. I will tell you what is the meaning of that. I will take one example. 17/36. Now if you divide this 17/36, okay, you don't do the division, just pay attention here. You will get this answer 0.47. This 2, 4 times 2 you will get, and further if you divide this, actually if you divide this, okay, you can try this in your notebook, okay, but if you actually divide this, you will see that this 2 number is repeating. Okay, so this number in which you can see it is not ending, it is repeating. Which number is repeating again and again? 2. So this can be written as 0.47. which number is repeating? 2, no? So I can put 2 ones, एक ही बार 2 लिखना है और 2 के ऊपर एक ऐसा छोटा सा डॉट लगा देना है. तो ये डॉट का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है 2, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा. आप डिवाइड करते जाओ, ये 2 रिपीट ही होते जाएगा हर बार. ओके, सो दिस नंबर इज कॉल्ड एज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता. और रिकरिंग मतलब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, रिकरिंग हो रहा है अगेन एंड अगेन, 2. So you will represent in this way. One more example is there. Suppose अगर ऐसा एक example है 33/26. Okay. Now if you divide this, you will get a big number. 269 230 769 2307. अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन दिस केस विच नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 692307 रिपीट हो रहा है. राइट, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 692307, फिर वापस यहाँ पे भी आ रहा है वही सेम 692307. फिर अगर आप और डिवाइड करेंगे तो फिर से वही नंबर रिपीट होगा. तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1.26922307. यही नंबर रिपीट हो रहा है ना, 692307. तो उसके ऊपर आप एक बड़ा सा ऐसा लाइन बार लगा देंगे, ऐसा लाइन. तो ऐसे नंबर्स जो एक से ज़्यादा नंबर रिपीट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा था जो कि 2 था, तो इसके लिए 2 के ऊपर डॉट लगा सकते हैं हम लोग. ओके, दैट इंडिकेट दैट 2 नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. इट इज़ रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. और लेकिन यहाँ पे एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 126922307 सभी ये सब नंबर रिपीट हो रहे हैं. तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जब एक से ज़्यादा नंबर है तो आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बार साइन जिसे बोलते हैं. ओके, सो दिस इंडिकेट दैट all these numbers are repeating again and again. After 7 again the 6 will come, right, and the number will start repeating. So this is called as the non terminating recurring type. I hope it is clear with this. Okay, now let us move to the exercise and we'll solve some sums so that you will get more idea. Okay, exercise 2.1. See, first question of your exercise of your textbook is it is on page number 21. You can refer the textbook. Question number 1, classify the decimal form of the given rational number into terminating and non terminating recurring type. आपको बताना है कि कौन सा
जो फ्रैक्शन अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हैं वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन टू यू दैट इज़ 13/5. तो आपको ये बताना है सॉल्यूशन में कि वेदर इट इज़ वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और वेदर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, राइट. तो देखिए यहाँ पे दो मेथड है, इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दो मेथड से. एक आपका पुराना मेथड, व्हाट इज दैट मेथड, दैट यू विल डू डिवीजन 5 and 13. आप इसको डिवाइड करिए और चेक करिए, अगर नंबर रिपीट हो रहा है देन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, और अगर नंबर रिपीट नहीं होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इट इज़ रिकरिंग टाइप. ये एक तरीका है. ठीक है, लेकिन ये भी एक इजी तरीका है, लेकिन अगर फ्रैक्शन बड़े नंबर होते हैं तो आपको डिवाइड करने में तकलीफ हो सकता है. तो आप किस तरह से बिना डिवीजन के आप बता सकते हैं कि भाई रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवीजन के किस तरह से बता सकते हैं, उसका भी एक तरीका है. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट. ओके, आई विल राइट वंस अगेन हियर एक्सरसाइज 2.1. ओके, हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ. उसके लिए आपको एक नोट याद रखना पड़ेगा. नोट, what you have to remember in that, you have to remember that if the prime factor, now you know what is prime factor, if the prime factor are 2 और 5, अगर कोई नंबर में डिनोमिनेटर में, ठीक है, प्राइम फैक्टर 2 या 5 आता है, खाली 2 या तो खाली 5, तो वो टर्मिनेटिंग होगा. तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. अगर कोई नंबर में 2 और 5 नहीं आता है, ओके, इफ 2 कोई भी प्राइम फैक्टर हो अदर देन 2 और 5, मतलब 2 और 5 नहीं है, नॉट देयर, और इसके अलावा कोई दूसरे नंबर्स है जैसे 3 है, 7 है, ये भी सब प्राइम फैक्टर्स है, राइट. तो ये मतलब 2 और 5 नहीं है और इसके अलावा कोई दूसरे नंबर्स है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. फिर से मैं बता दूं कि अगर आप इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे. अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर आप कोई नंबर का फैक्टर लेते हैं, ओके, आपको पता है फैक्टर कैसे निकालते हैं कोई भी नंबर का, आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, ओके. तो अगर आप फैक्टर निकालते हैं और अगर आपको 2 या तो 5 आता है, ठीक है, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा फैक्टर करने के बाद, फैक्टर निकालने के बाद. तो अगर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है. अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरे प्राइम फैक्टर है जैसे 3 है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. तो इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे वो अभी हम लोग चेक करते हैं इसमें. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 13/5. तो 13/5 में किस तरह से हम लोग उसको चेक करेंगे ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ. देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, देखिए एक तरीका है डिवीजन करने का, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, उसमें तो फिर डायरेक्ट पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन बिना डिवीजन के कैसे पता चलेगा वो मैं बता रहा हूँ. ओके, देखिए डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है, 5 ना, तो आप डिनोमिनेटर वाले टर्म को कॉन्सेंट्रेट करिए, राइट. तो आप क्या लिखेंगे इन दिस, आप इस तरह से एग्जाम में भी लिखेंगे, इन 13/5 डिनोमिनेटर इज 5, बराबर. या पहले हमेशा डिनोमिनेटर नोट करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, और आप लिखेंगे इन 13/5 द डिनोमिनेटर इज 5. देयरफॉर डिनोमिनेटर के पास कौन सा नंबर है, ओनली 5 एज अ प्राइम फैक्टर. डिनोमिनेटर के पास कौन सा नंबर है, 5. तो 5 इज ओनली द प्राइम फैक्टर, 5 इज ओनली, इसका कोई फैक्टर निकलेगा क्या 5 का, नहीं, 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो कैसे उसका फैक्टर निकलेगा. तो 5 इज ओनली प्राइम फैक्टर, 5 खुद ही एक प्राइम फैक्टर है. देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, 13/5 इज 13/5 हैज द टर्मिनेटिंग
डेसिमल। मतलब ये टर्मिनेटिंग टाइप है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, क्योंकि 5 इटसेल्फ एक प्राइम फैक्टर है। तो अभी मैंने बोला था या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो 5 है यहाँ पे। तो अगर 5 है तो आप सीधा लिख लीजिए 13/5 इज अ टर्मिनेटिंग टाइप, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 13/5 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। दैट्स इट। इज इट क्लियर विद दिस फर्स्ट सम? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड सम. Now more you will do the sum, more you will understand. 2/11. Now you try to tell me here what I will do here. देखिए फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल से, फर्स्ट स्टेप आप ऐसे लिखेंगे 2/11 इन 2/11. 11 is the denominator. This is fixed. You have to write this. 11 is the denominator, right? And then what you will say, 11 अगर आप देखेंगे 11 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 11 भी एक प्राइम नंबर ही है, राइट? उसका फैक्टर नहीं निकल सकता। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे थस डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। 11 भी एक प्राइम फैक्टर है, लेकिन क्या वो 2 और 5 है? नहीं। तो वो अदर देन 2 and 5 है, राइट? 2 and 5 अदर देन 2 and 5, देयरफॉर 2 और 5 नहीं है इसके प्राइम फैक्टर। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ 2/11 हैज़, अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर होता तो वो रिकरिंग होता, टर्मिनेटिंग होता, राइट? नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हैज़ रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो खाली आपको इतना ही फिर से मैं बता दूं, अगर फैक्टर निकालने के बाद अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर नंबर, डिनोमिनेटर जो नंबर है उसका फैक्टर निकालिए और उसमें अगर 2 या तो 5 आता है, दोनों में से कोई एक, तो खाली 2 या तो खाली 5 आता है, दोनों नहीं आएंगे, या तो खाली 2 आएंगे या तो खाली 5 आएगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरे नंबर्स आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बस, ठीक है। थर्ड सम 29/16. नाउ टेल मी इन दिस केस, तो फर्स्ट यू विल राइट इन 29/16 what is denominator, 16 is a denominator, 16 is denominator, ठीक है। 16 तो डिनोमिनेटर है। अब 16 के फैक्टर्स निकल सकते हैं क्या, ये 16 के फैक्टर्स निकल सकते हैं 2 से, ठीक है। सो 2 × 2 × 2 × 2 बराबर। आप 8 2 16 भी करेंगे, फिर 8 का फिर से फैक्टर निकालना पड़ेगा जब तक वो प्राइम नंबर ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ पे कौन सा प्राइम फैक्टर है, एक ही है ना, 2 ही है ना, राइट? तो अगर 2 प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट? सो देयरफॉर यू विल राइट, थस आप रीज़न लिखेंगे डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2, क्योंकि 2 के अलावा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, राइट? सो डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 एज प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 29/16 हैज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग होता है अगर 2 या 5 प्राइम फैक्टर होता है तो दोनों में से कोई एक। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमको फैक्टर निकालना पड़ा। अभी पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड सम में वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, डायरेक्ट थे, डायरेक्ट हम लोगों ने देखा था और we can identify, but यहाँ पे आपको factors निकालने पड़ेंगे, right? And you will get it. So I hope it is clear with this. One more sum I will try for you, and the last sum you have to do, that will be the homework. Okay? Okay. Fourth sum we'll do 17/125. Now you also can try in your notebook by the time.
सो यू विल राइट सेम थिंग इन 17 अपॉन 125. डिनोमिनेटर इसमें क्या है 125, राइट. तो 125 इज द डिनोमिनेटर. नाउ कैन यू टेक आउट द फैक्टर्स ऑफ 125. यस, फैक्टर्स निकल सकते हैं 125 के. 5 की टेबल में आता है, राइट. 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट. नाउ यू कैन सी हियर ओनली वन नंबर, दैट इज 5. सो 5 इज एज अ प्राइम फैक्टर. तो डिनोमिनेटर में कौन सा प्राइम फैक्टर है? थस डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज प्राइम फैक्टर, राइट. सो अगर 5 प्राइम फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग, राइट. देयरफॉर 17 अपॉन 125 हैज अ टर्मिनेटिंग decimal. Correct? I hope it is clear now how to find the terminating and non-terminating. Okay, I think so. Instead of doing the division, you can do in this method, and this method is very much easy compared to the division. One more sum is there. You can take that homework, 11 upon 6. You can note down. Okay, it is there in your textbook also, 11 upon 6, that you can try. Okay, shall we move further now? Is it clear with this? See these sums once again, check this lecture once again, and it is very easy. Okay, chalo, now we'll move further. Now in next thing what we have to do in question number 2, they have told us write the following rational number in a decimal form. Now एक rational number आपको दिया है, ऐसे बहुत सारे rational number दिए हैं, 127 upon 200. Now they have told you convert this, this is a rational number into a decimal form. Decimal form में convert करना है. Decimal form means what? You have to divide it and you have to get this answer. So simple thing is there, you have to do here solution 127 upon 200. इसको आप divide करिए. आप इसको कैसे भी divide करिए. आप सिंपल जैसे एक शून्य में आप डिवाइड करते थे वैसे ही आप डिवाइड करिए. 2 से डिवाइड करिए जैसे, ओके 2 से जाएगा 127 एंड 200. यस, यू नो कि आपको एक ही नंबर से डिवाइड करना है जो न्यूमरेटर भी, जिससे न्यूमरेटर कटे और डिनोमिनेटर भी कटे, राइट. एक ही मल्टीपल होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए, राइट. सो अगर मैं 2 से काट सकता हूँ इसको, आई कैन डिवाइड बाई 2. सो व्हाट आई विल गेट हियर, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं आप. यू कैन शो ऑन द पेपर डायरेक्टली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ओके, सो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 63.5 आ जाएगा इसका आंसर, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा. करेक्ट. आफ्टर डिवाइडिंग दैट व्हाट आई विल गेट हियर, 63.5 अपॉन 100. नाउ यू नो 100 में 2 zeros आ जाए तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो इट बिकम्स व्हाट 0.635. तो आपका आंसर आ गया ये 127 upon 100 is equal to 0.635. Basic division is there. If you know the basic division, then you can do it. Okay, there is not an issue, big issue. Simple divisions are there. You should know the simple divisions. चलिए next sum. This you can also try. 25 upon 99. Now you have to divide this. 25 upon 99. चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ डिवीजन करना. ओके, यू नो 99 will come here and 25 will come here. Okay, now you can also try in your notebook by the time I do, or you can just check it out. Okay, see 99 cannot be divided by 25, so you have to put 0, you know the basic rule. And 99 into 0 becomes what? 0, right? Here it will be 0. We'll divide it. Okay, I'll show you all the basic steps I am showing you. Pay attention. I can do the direct division also, but आपको समझाने के लिए मैं पूरा सब basic steps कर रहा हूँ. तो 99 zeros are 0, so it becomes 5 and 2, right? तो अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा
अब पॉइंट आने के बाद आपको पता है जब यहाँ पे पॉइंट आता है 0 के पास तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक 0 ऐड हो जाता है 25 के पास. यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो, बट मैंने आपको बताया है किस तरह से आए. अब 99 के टेबल में 250 आना चाहिए, या तो 250 के बराबर आना चाहिए नंबर, या तो 250 से कम वाला आना चाहिए. तो 99 के टेबल में अगर इफ़ यू मल्टीप्लाई 99 टू ज़ाल इज़ हाउ मच, 99 टू ज़ाल 198, क्योंकि 99 3 ज़ाल 250 से ज़्यादा हो जाएगा. सो विल टेक लेस देन 250, इट इज़ ओके. माइनस 8, तो माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 10 माइनस 8 बिकम्स, सी हियर 10 माइनस 8 बिकम्स व्हाट, 2. एंड बोरो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस से 9 नहीं जाएगा, बट यू विल टेक 1 फ्रॉम हियर. ओके, सो इट बिकम्स 14 माइनस 9, दैट इज़ 5, एंड दिस बिकम्स 0. पता है ना आपको माइनस कैसे किया जाता है, राइट. नाउ आफ्टर पॉइंट यू कैन पुट एज मेनी 0 एज यू वांट. तो 99 के टेबल में 52 तो जाने वाला नहीं है, तो आप एक 0 ऐड कर दीजिए इसमें, करेक्ट. अब 520 देखिए 99 के टेबल में आता है, या 520 से कम वाला नंबर आता है. यस, कम वाला नंबर आता है, 520 तो नहीं आ रहा है. सो 99 5 आर, ओके. 99 इंटू 5 बिकम्स वॉट, 495. नाउ यू डू द माइनस, यू विल गेट 25. अब माइनस करके देखिए आपको 25 आ जाएगा, ठीक है. So once you got this, so this is your final answer. So therefore 25 upon 99 is equal to 0.25. मुझे कैसे पता चला ये फाइनल आंसर है? अगर आप इसको आगे डिवाइड करेंगे तो देखिए, अगर मैं उसको आगे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर से यही देखो, यही सीरीज चालू हो रहा है ना, यहाँ से देखिए 250 फिर से, तो 25 इज़ गोइंग टू रिपीट. तो 25 नंबर बार बार रिपीट होने वाला है. तो 25 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए 25 के ऊपर में कौन सा साइन लगा दूंगा, बार का साइन, लाइन. तो दिस रिप्रेजेंट दैट 25 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. आपको बताना नहीं है, खाली आपको बार साइन लगा देना है, और आपको क्लियर हो गया कि कैसे रिपीट हो रहा है, करेक्ट. जस्ट चेक इट आउट वंस अगेन. आप वीडियो बाद में पॉज करके भी उसको चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ आई एम डूइंग द सम्स वन बाय वन. लेटर जब आप वीडियोस देखेंगे तो फिर से आप उसको पॉज करके फिर से आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट सम विल डू नाउ. 23 upon 7. You can also try this. 23 upon 7. आप इसको ट्राई करिए. दिस विल बी द लिटिल बिट लॉन्ग सम, ठीक है. आप इसको ट्राई करिए, मैं भी देख लेता हूँ. 7 and 23. ओके, अब 7 के टेबल में 23 जा रहा है, नहीं. 7 3 is 21. यस, सो यू कैन डिवाइड इट. सो माइनस करिए, 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट. नो पॉइंट, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा. सो 7 2 is 14 माइनस, सो यू विल गेट ये 6, ठीक है. यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, एक और 0 आप लगा दीजिए यहाँ पे. सो 8 7 8 साल कितना आता है आपका, 56. तो इसको आप 60 में से 56 माइनस कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 4. एक 0, यहाँ पे 0 फिर से आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, 40 हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे 5 7 5 साल 35, ठीक है. इसको माइनस करिए तो ये 0 हो जाएगा. 10 माइनस 5 इज़ 5. फिर से एक यहाँ पे 0 लगा दीजिए. 7 के टेबल में 50 आता है क्या, नहीं, बट 7 7 साल 49 तो आ रहा है, ओके. तो 49, तो यहाँ पे आपका फिर से ये आपका आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, ओके. एंड 7 1 साल 7, ठीक है. 7 1 साल 7. तो 10 माइनस 7 इज़ 3. मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आई डोंट हैव अ स्पेस नाउ. एंड एक 0 और लग जाएगा फिर से यहाँ पर, और फाइनली 7 4 ज़ाल 28. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है. ये कंटिन्यू, आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे डिवाइड करके इसका कंटिन्यू रखा हूँ, कंटिन्यूशन, बिकॉज ये फिट नहीं हो रहा था,
आप अपने बुक में करिए, फिट हो जाएगी। तो आप मैं यहाँ पे देखूँगा मुझे ये नंबर रिपीट हो रहा है 23/7 को मैंने डिवाइड किया तो देखिए 3.28571 आ रहा है। इसके बाद ये नंबर फिर से रिपीट होने वाला है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, ये नंबर फिर से रिपीट होगा, फिर से 4 के बाद 2 आने वाला है। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ तक स्टॉप कर देना है और आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है इसको कि 3.2851714 उसके ऊपर 2 से लेकर 4 तक वहाँ पे एक डैश बार साइन लगा देना है। सो दिस शो दैट दिस नंबर्स आर रिपीटिंग। ओके, so you can try this also in your notebook once again, so definitely you will find easy. Clear? So I hope it is clear with this, how to find the terminating, non-terminating, plus how to convert the fraction into the decimal form. Okay, this was the basic things which we have seen today, and I would like to give you the homework. Please note down the homework for today. Homework will be, you will do this decimal form sums. ओके, 1 is 4/5, एक सम आप ये नोट कर लीजिए जो कि 4th सम है टेक्स्ट बुक का, और 5th सम जो आपका है वो है 17/8। ये आप दोनों सम आप ट्राई करिए, ओके, एंड टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर whether you got or not, right? So 4/5 and 17/8 that you have to try. So I hope it is clear till now. We'll stop here for the day, and in next lecture we'll continue with this exercise further with the next sum. Thank you so much, students.